آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج کا موضوع بہت ہی حساس ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے اس پر بہت غلط تاثر پایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر پوچھا جاتا ہے، آغا خان کی دولت کہاں سے آتی ہے؟ اور اس سے جڑا ایک اور سوال، کیا یہ سب دسوند یا جماعت کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال صرف باہر والے نہیں پوچھتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر بھی کچھ لوگ اس پر کنفیوز رہتے ہیں۔ اور جب واضح جواب نہیں ملتا تو پھر غلط فہمیاں، مفروضے اور الزامات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس گفتگو میں ہم کوئی اندازہ نہیں لگائیں گے، کوئی گیس ورک نہیں۔ جی ہم صرف حقائق کے ساتھ بات کریں گے، مستند اور ڈاکیومنٹڈ انٹرویوز کے ساتھ، اور خود امام شاہ کریم کے اپنے الفاظ کے حوالے سے۔ اچھا، تو آج ہمارا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ذاتی دولت اور امامت کے فنڈز میں آخر فرق کیا ہے، اور یہ کہ دسوند اور دیگر مذہبی واجبات کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، اور AKDN کیا ہے؟ کیا امام اس سے ذاتی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اور سب سے اہم، امام نے سوال کا جواب خود کیا دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست، اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز ہو چکے ہیں، تو برائے کرم سب کو سبسکرائب کر لیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستند علم زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس گفتگو کو اپنے واٹس ایپ گروپس، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں حقائق کی، نہ افواہ نہ جذبات، صرف حقیقت۔ ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ہمیں اسے 2 حصوں میں توڑنا ہوگا۔ پہلا حصہ ہے ذاتی دولت یعنی پرسنل ویلتھ، اور دوسرا حصہ ہے ادارہ جاتی دولت یعنی انسٹیٹیوشنل ویلتھ۔ سب سے بڑی غلط فہمی ان دونوں کو ملا دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، تو آئیے سب سے پہلے ذاتی دولت کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مذہبی واجبات پر آئیں، پبلک ریکارڈ میں کیا موجود ہے؟ ان کی ذاتی دولت کے ذرائع کیا ہیں؟ دیکھیں، ذرائع بہت واضح اور تاریخی طور پر مستند ہیں۔ بنیادی طور پر 4 بڑے ذرائع ہیں۔ اچھا، پہلا ہے خاندانی وراثت۔ یہ سلسلہ ان کی پردادی لیڈی علیشہ سے شروع ہوتا ہے، جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بہت دانشمندانہ سرمایہ کاری کی تھی۔ یعنی یہ کوئی نئی دولت نہیں، اس کی جڑیں 1 صدی سے بھی پرانی ہیں۔ بالکل۔ دوسرا بڑا ذریعہ ان کے دادا امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم سے وراثت میں ملنے والے ذاتی کاروبار اور سرمایہ کاری ہیں۔ تو یہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ جی۔ تیسرا ذریعہ جو بہت مشہور بھی ہے، وہ ان کے والد پرنس علی خان سے وراثت میں ملا گھوڑوں کی افزائش کا کاروبار ہے، جسے ہارس بریڈنگ بزنس کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا شوق نہیں تھا، ہم دنیا کے مشہور ترین ریسنگ اور بریڈنگ اداروں میں سے ایک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار تھا۔ بلا شبہ۔ اور چوتھا ذریعہ امام شاہ کریم الحسینی کی اپنی ذاتی سرمایہ کاری ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے صرف وراثت پر انحصار نہیں کیا، جی، انہوں نے اسے مزید بڑھایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال سارڈینیا، اٹلی میں کوسٹا سمرالڈا کی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ ایک پورے ساحل کو دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں بدلنے کا ویژن تھا۔ اچھا، اسی طرح میریڈیانا ایئر لائن اور CGIA ہوٹل چین جیسی سرمایہ کاریاں بھی ہیں۔ تو اگر ہم ان چاروں نکات کو جوڑیں تو ہمارے سامنے ایک کثیر النسلی کاروباری سلطنت کی تصویر بنتی ہے جو ریئل اسٹیٹ، سرمایہ کاری، ہارس ریسنگ اور سیاحت جیسے شعبوں پر محیط ہے۔ اور یہ سب کچھ جماعت کے فنڈ سے بالکل الگ ہے۔ یہی کلیدی نکتہ ہے۔ یہ ایک آزادانہ، خود مختار مالیاتی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ذاتی دولت کا پہلو تو بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جہاں سب سے زیادہ الجھن پائی جاتی ہے، ادارہ جاتی فنڈز یعنی دسوند اور دیگر مذہبی واجبات۔ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہاں سب سے اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح کسی ملک کا صدر اور صدر کا دفتر 2 الگ چیزیں ہیں، اسی طرح آغا خان بحیثیت فرد اور اسماعیلی امامت بحیثیت ادارہ 2 بالکل الگ وجود ہیں۔ اچھا، تو دسوند اور دیگر واجبات فرد کو نہیں بلکہ امامت کے دفتر کو دی جاتی ہیں۔ یہ ادارہ جاتی آمدنی ہے، ذاتی نہیں۔ یہ ایک اہم سٹرکچرل فرق ہے، لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو صرف کہنے کی بات ہے۔ عملی طور پر اس علیحدگی کا کیا ثبوت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور بہترین ثبوت خود امام کے اپنے الفاظ ہیں۔ آئیے براہ راست امام شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم سے سنتے ہیں۔ جی،
4 जून 1985 को लंदन में इंडिपेंडेंट टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए इमाम ने वजाहत की थी कि इदारा जाती दौलत वो है जो अकीदे पर अमल करने वालों से आती है या खुद इदारों से। और जाती दौलत? उन्होंने फरमाया कि जाती दौलत मुझे अपने वालिद और दादा से विरासत में मिली, और फिर उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि इदारा जाती दौलत सिर्फ और सिर्फ इदारा जाती तरक्की के लिए इस्तेमाल होती है। सिर्फ और सिर्फ, ये अल्फाज बहुत अहम है। बिल्कुल, इससे ज्यादा वाज़े अल्फाज में शायद ही कहा जा सकता है। लेकिन क्या उन्होंने ये बात सिर्फ एक बार कही है? नहीं, कई बार उन्होंने कई दहाइयों तक मुख्तलिफ मौके पर इसी नुक्ते पर जोर दिया है। मिसाल के तौर पर 26 सितंबर 2008 को फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अकीदे से आने वाली और अकीदे के लिए इस्तेमाल होने वाली दौलत और फर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़ाती दौलत में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये दिलचस्प है। यहाँ वो ना सिर्फ इस फर्क को दोबारा वाजे कर रहे हैं, बल्कि एक नया पहलू भी सामने ला रहे हैं। जी, उन्होंने आगे कहा कि इमाम के पास अहम वसाइल की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हमारी ज़रूरियात को किसी भी तरह पूरा नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशारा है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इस ख्याल को रद्द करता है कि ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई लामहदूद खजाना है। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, 8 अक्टूबर 1986 को सीवीसी के एक इंटरव्यू में उन्होंने खास तौर पर मजहबी वाजिबात के बारे में बात की। अच्छा, इसमें क्या कहा था? उन्होंने फरमाया कि ये रज़ाकाराना पेशकशें इदारा जाती आमदनी हैं और जब तक ये वसाइल इमाम के इदारा जाती किरदार के लिए मुनासिब तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तब तक ये निज़ाम कायम रहता है। तो इन तमाम इंटरव्यूज़ का खुलासा ये है कि एक तरफ ज़ाती कारोबार और विरासत है और दूसरी तरफ इदारा जाती फंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की तरक्की के लिए हैं। जी हाँ, जैसे जमात खानों की तामीर, तालीमी और सेहत के अदारे, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और समाजी बहबूद के प्रोग्राम। और ये फंड्स आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN के कामों को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। AKDN एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें गैर मुनाफा बख्श और मुनाफा बख्श दोनों तरह के इदारे शामिल हैं। तो ये शुबह पैदा होना फितरी है कि शायद यहाँ ज़ाती और इदारा जाती लकीरें धुंधला जाती हों। मतलब कि क्या इमाम ज़ाती तौर पर AKDN के मुनाफे से फ़ायदा उठाते हैं? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसका जवाब भी हमें बराह रास्त इमाम के अल्फाज में ही मिलता है। सही। तो 2008 में पड़ोकियस डे पुर्तगाल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का वाहिद शेयर होल्डर हूं, लेकिन मैं कभी मुनाफा यानी डिविडेंड्स नहीं निकालता। कभी नहीं? कभी नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि मकसद वसाइल से खिदमत करना है, उन्हें ज़ाती बनाना नहीं। ये एक हैरान कुन मालियाती और कानूनी ढांचा है। वो कह रहे हैं कि मैं वाहिद शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं कभी मुनाफा नहीं निकालता। जी, और उन्होंने आगे ये भी वाज़ेह किया कि अगर ये काम आगा खान के नाम से किया जाता है तो ये इमामत के नाम पर किया जाता है, ना कि आगा खान के ज़ाती नाम पर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक तरह का दाइनी ट्रस्ट है जहाँ तमाम मुनाफा वापस मिशन में ही लगाया जाता है। बिल्कुल, AKDN का मॉडल हाइब्रिड है। उसके मुनाफा बख्श हिस्से जैसे सरीना होटल्स इसलिए बनाए गए हैं कि वो खुद मुख्तार हों और आमदनी पैदा करें। और वो आमदनी फिर कहाँ जाती है? वो आमदनी किसी फर्द की जेब में नहीं जाती, बल्कि वो नेटवर्क के गैर मुनाफा बख्श कामों जैसे स्कूलों और अस्पतालों को फंड करने में मदद करती है। तो मुनाफा खुद निज़ाम को बरकरार रखने और उसे फैलाने का एक जरिया है। मकसद खिदमत करना है, ज़ाती दौलत बनाना नहीं। बिल्कुल, ये ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि तवील मुद्दती पायदार तरक्की के लिए बनाया गया एक निज़ाम है। ठीक है, ये हमें वापस उस इशारे पर लाता है जो फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में दिया गया था कि इदारा जाती फंड्स काफ़ी नहीं हैं। जी, ये कहानी का वो हिस्सा है जिस पर ज़्यादातर लोग कभी बात नहीं करते। जब ज़रूरियात वसाइल से बढ़ जाएं तो क्या होता है? ये वो मुकाम है जहां पूरी कहानी जो लोगों के जहनों में है वो उलट जाती है। वो कैसे? आम तासुर ये है कि पैसा जमात से आगा खां के ज़ाती खातों में जाता है। शवाहिद ये बताते हैं कि अक्सर इसके बरक्स होता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उनकी ज़ाती दौलत इदारा जाती मंसूबों में लगाई जाती है? मैं नहीं कह रहा, ये बात भी मुस्तनिद इंटरव्यू में मौजूद है। हमें इस मामले का सबसे अहम टुकड़ा 6 सितंबर 1979 को BBC रेडियो 4 के एक इंटरव्यू से मिलता है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया था? इमाम ने फरमाया कि इमामत की आमदनी जमात की तरफ से इमाम को दी जाती है। मैं कहूँगा कि इन फंड्स का 98%
और बाज़ औक़ात 98% से भी बहुत ज़्यादा। कितना ज्यादा? उन्होंने कहा शायद 150% तक कम्युनिटी को वापस जाता है। 150%? ये अदद तो नाकाबिल यकीन है। जी। उन्होंने वाज़े कहा कि इमामत कई मौक़े पर उससे ज़्यादा खर्च कर रही होती जितना उसके पास होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो इजाफी 50% है वो कहीं से तो आता होगा। और वो उनकी ज़ाती दौलत से आता है। ये सिर्फ हिसाब किताब का मामला नहीं है, ये क़यादत के एक बुनियादी फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। सही। यहाँ ज़ाती दौलत कम्युनिटी की तरक्की के लिए एक हिफाजती जाल, एक बैकअप और एक तरह से वेंचर कैपिटल फंड का काम करती है। तो इस सारी गुफ्तगू को अगर हम जोड़ कर देखें तो जब हमने शुरू किया था तो सवाल था आगा खान की दौलत कहाँ से आती है। लेकिन तमाम हक़ाइक़ और इंटरव्यूज़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि उनकी दौलत जाती कहाँ है। बिल्कुल यही नुक्ता है। शवाहिद हमें दो बिल्कुल अलग अलग मालियाती धारे दिखाते हैं। एक तरफ ज़ाती दौलत है जो नस्लों की कारोबारी जहानत और सरमायाकारी पर मबनी है, और दूसरी तरफ इदारा जाती फंड्स हैं जो मजहबी वाजिबात से आते हैं। और ये ना सिर्फ सख्ती से अलग हैं बल्कि अक्सर बहाव उल्टा होता है, जहां ज़ाती फंड्स बड़े पैमाने पर इदारा जाती कामों की कमी को पूरा करते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या आगा खान कम्युनिटी से लेते हैं। जी नहीं, जब हम तमाम शवाहिद को एक साथ जोड़ते हैं तो असल सवाल ये बनता है कि दुनिया में कितने ऐसे लीडर हैं जिनके पास एक मुस्तनद, शफाफ और इदारा जाती मॉडल मौजूद है, जहां वो मुस्तकिल तौर पर जितना वसूल करते हैं इससे कहीं ज्यादा वापस देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गौर करना चाहिए। और इस गुफ्तगू को खत्म करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त। अब हमारे 3 नहीं बल्कि 4 चैनल्स हो चुके हैं। अगर इस तरह की गहरी और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू पसंद आई हो तो बराए करम सबको सब्सक्राइब कर लें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि मुस्तनद इल्म ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस गुफ्तगू को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।